सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू फ्राइडे फिएस्टा। यह शुक्रवार को वापस आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है। एंड क्या है फ्राइडे फिएस्टा? सो फ्राइडे फिएस्टा है, डबल मजा है और नो दाम फ्राइडे फिएस्टा, जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ फ्राइडे फिएस्टा आना। आप फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग हैं जो नए दिख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पुराने दिख रहे हैं। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू पद्मा जी फॉर कीपिंग योर वीडियो ऑन. At least I can feel that I'm talking to human beings and not to the screen. And I request all of you, as usual, that please switch on your video so that I can connect with human beings. Thank you, Neeta Patel, that now I feel, thank you, Neha, that now I'm feeling that, okay, there are few human beings here in this screen. Thank you, Cecilia Bose. Thank you so much. That's switching on. Thank you, Vandana. Thank you. So please switch on your videos so that I can connect with you face to face. And there is a huge difference having a face to face connection. And Vandana, may I request you that can you share the link in the group? Are you in Friday Fiesta group? Are you, Vandana? Yeah. So if people now joining late, can you just share them link? If they are joining, then just I couldn't find the link. So I've been searching. I don't know why I couldn't find. I have posted in Friday Fiesta group. So if you are in Friday Fiesta group, you will get it. I have already posted it in that group. So if you are joining this class regularly, then I request please be in that group so that every Friday we can, and the link is same for every Friday. So anyone every time can join in. So welcome all of you to Friday Fiesta. और क्या करते हैं हम ये Friday Fiesta में? मस्ती 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 मस्ती। मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। हम सब यहाँ पर बच्चे बन जाते हैं। ऑफ कोर्स आज हमारे साथ भगवान अंकल नहीं है, जिनका लाफ्टर क्लब हमेशा रहता है और जिसकी वजह से हम बहुत सारा हंसते हैं और बच्चे बन जाते हैं। आज भगवान अंकल is busy with some family function, so today we will have more time to talk about Lewis philosophy. And what is the topic today? What is the topic today? That why do we hold on to illness and struggles in our life? And आप लोग बोलेंगे कि हम होल्ड ऑन करते हैं, हमने पकड़ के रखा है। हाँ, अगर लुइस की फिलॉसफी अगर हम समझ रहे हैं तो हमने ही पकड़ के रखा है। जो लोग यहाँ पर अगर हिंदी समझ नहीं पाते हैं, please request me, then I will shift to English also and I will translate. But most of the people here have the request that please talk in Hindi, so I am respecting the people here and I'm talking in Hindi. But if you cannot understand Hindi, do let me know and I will translate in English too. So हम जब बातें करते हैं इलनेस की और स्ट्रगल की, क्या फीलिंग्स आती है हमारे भीतर जब मैं इलनेस की बातें करती हूँ? हाउ इज दैट वर्ड साउंड टू यू? हाउ डज इट फील टू यू? व्हाट डू यू फील? You can use chat box and you can share your feelings, and also you can just unmute yourself and you can share your feelings too. When I am talking about illness, बीमारी के बारे में जब मैं कुछ बोलती हूँ, बीमारी, यह शब्द सुन के आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं और कौन सी इमोशंस जनरेट होती है? अभी आप बोलेंगे ये कोई पूछने की बात हुई क्या? इलनेस सुन के कोई खुश तो नहीं होता है कि नहीं? इलनेस सुन के किसी को मजा तो नहीं आती है कि नहीं? राइट? तो इलनेस से डेफिनेटली वी एक्सपीरियंस पेन, वी एक्सपीरियंस एंजाइटी, बहुत सारे अपने आप हमारे विचार जो है भविष्य की तरफ चले जाते हैं और पास्ट की तरफ, भूतकाल की तरफ चले जाते हैं कि क्या होगा मेरा, भूतकाल में इसके साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा क्या होगा अभी इस हाल में, और फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा. सो वी गो इनटू दैट एंजाइटी मोड, we go into overthinking mode, we go into sometimes panic attacks,
we go into most often what kind of feelings are we experiencing? कौन सी इमोशंस को हम अनुभव कर रहे हैं? हम अनुभव कर रहे हैं फियर को, है ना? डर के मारे हम सब डर जाते हैं जब इलनेस का नाम सुना। ओ बाप रे, आइदर वो इलनेस बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, किसी को नहीं चाहिए बीमारी, इजंट इट, कि कब अभी इसमें से बाहर निकलेंगे। ओ माय गॉड, कितने डॉक्टर्स के चक्कर खाने पड़ेंगे, क्या होगा, कितने ब्लड रिपोर्ट्स, ये वो चालू हो जाएगा। एंड ऑल दोस थॉट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक इन आवर माइंड, इजंट इट? सबके साथ वही होता है, राइट? एंड same way, if we are talking about struggle, it can be any struggle, it can be financial struggle or relationship issues, any kind of struggle, then what kind of again emotions pops up in our mind? Same? Yes? Same? Yes, Neha? Yeah, thank you. Thank you for nodding your head. Thank you for showing that gesture, for that validation. Thank you. So, जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो डेफिनेटली व्हाट हैपेंस, वी फील आइसोलेटेड। अगेन हमें लगेगा कि क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा, कब इसमें से मैं बाहर निकलूंगी, कोई तो मसीहा ऐसा मुझे मिल जाए कि इसमें से मुझे तार दे, मुझे इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा दे, कोई सॉल्यूशन दिखा दे। एंड वही सॉल्यूशन की तरफ हम ढूंढते कि कोई तो मसीहा हमारी जिंदगी में आके कुछ तो ऐसा जादू कर ले ताकि ये सिचुएशन से मैं बाहर निकल जाऊं, एंड एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड आउट सो फास्ट एंड सो इजीली कि मैं ज्यादा इसमें परेशान ना हूं। तो ज्यादा करके हम इसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं। Yeah, how to get rid of these thoughts? Yes, Neha. Thank you for asking that question. We are coming to it. So, जब इलनेस हो या कोई भी टाइप की स्ट्रगल हो, हम ज्यादा करके उसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं। We don't want it, and we are so much fearful and feeling so much pain and so much anxiety inside, that is like, is what is the kind of energy we will experience if this is the thing which is going on? Definitely, see, in the energy scale, the lowest of the energies is about jealousy, fear, anxiety, panic attacks. And in the energy field, in the spectrum, we have a spectrum, and in the spectrum, what will be the highest form of energy? Again, people who are new to this, I will explain you that emotion, what does emotion mean? Emotion means energy in motion. कुछ भी हमारी जिंदगी में हमारे एक्सपेक्टेशंस से विपरीत आने लगा, समथिंग डिफरेंट देन अवर एक्सपेक्टेशंस, immediately we are going to have a stream of thoughts, पूरा परेड निकल जाती है थॉट्स से, and those thoughts are triggering certain emotions, and those are energy in motions. And all those energies, the thoughts we think here in the mind, and energies we feel here in the body, in our heart and in our body. So all these emotions are running all over our body, and energy in motion. So these are the emotions we are sending it to the universe, and the energies of running away, energies of fear and anxiety, energies of कि मैं हेल्पलेस हूं, कोई तो मुझे बचाओ, कोई मसीहा आके मुझे बचाओ, मैं हेल्पलेस हूं। And now again, coming back to the same thing, in every session I am sharing the same thing, that every thought is a seed. Seed in the fertile land, जहां पर हम वो सीड से हम उन्हें सीड डाल दिया, हमारे इमोशंस है उसको नर्चर कर रही है, और जितनी हम इमोशंस फील कर रहे हैं वहां से उसमें से एक बड़ा प्लांट ग्रो हो रहा है, और वह प्लांट में से ट्री बन रहा है, एंड इट्स ग्रोइंग ऑन. And that's how we keep creating the same thing again and again and again, because of our past emotional experiences, the seeds which we have put in the past. And again, we are recreating one more seed, and we are planting one more seed, and we are planting one more seed. And with all these things, the हम पूरा जंगल बना रहे हैं. जंगल बना रहे हैं किस चीज का? Pain, fear, anxiety, and then we don't want it. Oh, I don't want it. Oh, I don't want it. And
I want to get rid of it. कोई तो मुझे बचाओ और कोई तो मेरा मसीहा बनो जो उसमें से solution निकालो. But the whole thing, let us understand that first of all, why we are attracting it and why are we holding on to it. Okay, so first let's understand the root causes of this, and then we will talk about the source of workout, right? So सबसे पहले जो है वो ये आता है कि हम नेचर में देखते हैं, जब हम कुदरत में देखते हैं तो आप क्या देखते हो? कुदरत में हमें सादा करके हमें पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं कि नहीं? हमें दिखाई देते हैं कि अलग अलग रंग बिरंगी फ्लावर्स दिखाई देते हैं. और जब आप समझो कि पेड़ों के पास जा रहे हो और पेड़ अच्छा सुंदर सा लॉन है, गार्डन है और पेड़ है वहां पर, एंड व्हेन यू गो देयर, व्हाट डू यू फील? You feel, definitely we all feel good. Most often we all feel good and we feel wow, एक सुकून मिल रहा है मेरे दिल को, right? Isn't it? Yes. उसी तरह से अगर समझो कि आप रंग बिरंगी फ्लावर के इसमें हो, बगीचे में हो और सुंदर से सुंदर फ्लावर्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं, फूल, और उनकी सुंदरता देख के यू आर इन द ऑ, वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज मैग्निफिसेंट, इजंट इट? तो हमारे दिल में एक घंटी बजती है, हमारे दिल में लगता है कि वाह ये स्वर्ग है, वो उतनी अच्छी वाली सुकून वाली एक फीलिंग आती है. Why do we experience those feelings when we are in nature? आप फॉरेस्ट में चल के जा रहे हो, आप वैली में हो, आप माउंटेन्स पे हो, आप खुले आसमान के नीचे हो, आप समंदर किनारे हो और बीच पे चलते जा रहे हो, and you can see the vastness of the sea, and when you see that vastness of the sea you feel wow, and you don't want to go from there and you just want to be there in that nature, in that beauty. क्यों आपको ऐसा लग रहा है? उसका कारण है कि जो सुंदरता मैं बाहर देख रही हूं वो सारी सुंदरता मेरे भीतर भी है. जो स्पेस और जो वास्टनेस मैं एक समंदर किनारे देख रही हूं वो सारी वास्टनेस मेरे भीतर भी है. The beauty which is I'm observing and I am enjoying outside, the same beauty is inside me. And the same vastness is inside me. So by birth, when we came, we were that perfect, whole, and complete being, a being of love, a being of light. We were complete. And there was nothing wrong in us. And that's where, and it's still there. It is still there. But it is now hidden under the layers and under the judgments and under our prejudices. So हम जो हमारे भीतर का जो वही प्रेम, वही प्रकाश जो लेके हम आए थे वो कहीं ना कहीं छिप जाता है. But जब when we go to nature, when we go to any place, then automatically again that light which is within us, that love which is within us is come on the surface, and then we feel wow, and then we feel awe of it. So वही सुंदरता मेरे भीतर है, वो जो सुंदरता बाहर है. ओके, लाइक यू नो, अभी मैं जब मेरी बालकनी, मेरे जहाँ पे मेरा स्टूडियो है और स्टूडियो की जो बालकनी है वहां पर एक बहुत सुंदर पेड़ है और मैं रोज वो सुंदर पेड़ से बातें करती रहती हूँ. और जैसे कि ये पेड़ जो है अभी मेरा वो दोस्त बन गया है, तो रोज मैं उसको लव वाइब्रेशंस भेजती रहती हूँ, रोज बातें करती रहती हूँ, और जब भी मैं वो पेड़ को देखती हूँ मुझे सुकून मिलता है, मेरे चेहरे पे एक खुशी आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है, ऐसे वाव, यू नो, वो वाव वाली फीलिंग आ जाती है, राइट? सो अगर ये पेड़ को पूछा जाए कि तुम कितनी चिंता करते हो, तुम कितने भय में रहते हो, क्या कभी तुमने वो पेड़ को अगर मैं पूछूं, क्या आपको लगता है वो पेड़ बोलेगा हाय राम पानी कैसे मिलेगा, मुझे पानी कैसे मिलेगा, मैं अंदर तो हूँ, आ गया तो हूँ, सिर पे आ गया हूँ, क्या मुझे पानी कभी मिलेगा, पानी कैसे मिलेगा? और वो मेरा पानी भर रही है, पानी कैसे मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा? क्या वो पेड़ कभी वो चिंता करेगा?
वो पेड़ कभी वो चिंता करेगा कि मुझे सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा, मुझे सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा, ये बादल आ गए हैं, ये बादल नहीं चाहिए, मुझे सूर्य प्रकाश चाहिए, मुझे सूर्य प्रकाश चाहिए। क्या वो पेड़ वो सारी शिकायतें करेगा? पेड़ क्या रहेगा, कैसा रहेगा पेड़? That tree will be in alignment, isn't it? क्या कर रहा है पेड़? पेड़ ग्रो हो जाते हैं। क्या आप और मैं वो पेड़ों को पानी डालने जाते हैं? अगर गार्डन में तो अलग बात है, जो रास्ते पे और रोड्स पे जो दिखते हैं पेड़, आप में से कोई पानी डालने जाता है? आप में से कोई पानी डालने नहीं जाता। पद्मा जी आप ऐसे मत बैठिए, जरा खोल दो, एनर्जी को फ्लो होने दो अंदर। पद्मा मेघनानी, मैंगनानी समथिंग, ऐसे नहीं बैठना है, हमेशा खुले हाथ रख के बैठना है। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द लव एंड लाइट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, राइट? सो थैंक यू भाविनी फॉर शोइंग अप with your smile on your face. So जो हमारे पेड़ है वो कभी चिंता नहीं करते कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मुझे सनलाइट कहाँ से मिलेगा, हाय राम मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे मिलेगा। पेड़ को कभी उस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। बस जो है मेरे अंदर सीड डाला है, धरती में सीड गाया है, और जिस धरती ने अंदर मेरा सीड है वही धरती मेरे लिए सारा कुछ अरेंज करेगी। सो पेड़ से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले पेड़ बहुत कुछ देते हैं, लेकिन पेड़ से हम सीखते क्या है? व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम मदर अर्थ? व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम ट्रीज? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल the tree has lots of trust in them, isn't it? कि इतना विश्वास है कि I will be taken care of, I will be taken care of, मेरा ध्यान रखा जाएगा। सो पेड़ को वो पूरा विश्वास है। एट द सेम टाइम अगर पेड़ को वो होता है कि अरे मेरे बाजू वाला पेड़ बहुत जल्दी उग रहा है यार, मेरे बाजू वाले पेड़ में तो बहुत सारे कलरफुल ट्रीज है, कलरफुल फ्लावर्स है, और मेरे अंदर नहीं है, क्या पेड़ कभी कंपैरिजन में जाता है? पेड़ का काम है सिर्फ मैं और मेरे मेरे पत्ते, मेरी ब्रांचेस, और सिर्फ मैं अपने आप नेचर में दोनों बाहों को फैला के आई एम इन सरेंडर, इजंट इट? यस। सो जब जो ट्री है इज कंप्लीटली इन सरेंडर, ग्रोइंग इन नेचर, इजंट इट? सो ना उसको कंप्लेन है, ना उसको कोई शिकायत नहीं है कि मेरा छोटा या बड़ा, ये पत्ते मेरे पास इतने कम है, इतने ज्यादा है। और कई बार अगर देखें तो जब भी सीजन आती है पत्ते सारे गिर जाते हैं और पूरा पेड़ बंजर बन जाता है कि नहीं? बट एट द सेम टाइम वही पेड़ को पूरा विश्वास भी है कि पेड़ बराबर वापस पूरा ग्रो होगा और हरियाली छा जाएगी। कई बार मैंने देखा है, मेरे ये जो पेड़ है मेरे बालकनी में, जब बहुत बारिश होती है ना जोरों की, और बहुत तूफानों वाली हवा चलती है, इतनी हवा चलती है कि आवाजें आती है, सब पेड़ के हिलने की आवाज आती है। और लास्ट सीजन में तो ऐसा हुआ था कि मेरे कई आजू बाजू की गलियों में कुछ पेड़ टूट गए थे, इतनी जोरों की तेज हवा। और जब मैं ये पेड़ के सामने बैठी थी और मैं देख रही हूँ कि ये पेड़ इधर से इधर ऐसे इतना झूल रहा है, एकदम झूले की तरह, और मुझे तो लगा कि ये पेड़ गया, अभी टूट गया आज, ऐसा इस तरह का लगा। एंड देन आई बिगन टॉकिंग विद दैट ट्री, कि यू आर वेरी स्ट्रांग and you are very well rooted and you are very grounded and you have given me so much company, आप मुझे इतनी अच्छी कंपनी दे रहे हो, and I really love you and you can make it and you can make it and you can sustain. And I was talking to that tree. तो फिर भी वो इतनी जोर जोर से वो पेड़ हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, बट फिर भी ये तूफान का भी, उसने तूफान को भी झेल लिया, एंड द ट्री वॉज इंटैक्ट, एंड अभी तक वो ट्री मेरे सामने है, मेरी सुंदरता बढ़ा रहा है। सो व्हाट डज इट टीच अस? व्हाट डज इट टीच अस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द ट्री टीचिंग अस? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल। कैन यू शेयर? लोग स्माइल दे रहे हैं, कोई सीरियस बैठा है, वाओ, थैंक यू। एटलीस्ट स्माइल आप दे सकते हो, उसमें लिए कोई पैसा नहीं लगेगा स्माइल देने में। आपके चेहरा सुंदर लगेगा जब आप स्माइल करोगे, तब है कि नहीं? देखो सिसिलिया स्माइल करने लगी। लक्ष्मी थैंक यू फॉर स्माइलिंग। मंजित थैंक यू फॉर स्माइलिंग। थैंक यू पद्मा एंड भाविनी फॉर स्माइलिंग। थैंक यू। सो
basically the tree is teaching us that acceptance, कि कुछ भी कितना भी तूफान आ जाए, वह स्वीकार भाव में है, वह साक्षी भाव में सब कुछ देख रहा है. And then the tree is loving it, and tree is trusting the universe, and tree has patience. श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा और सबूरी, जैसे शिव के साईं बाबा भी कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, पूरी श्रद्धा और सबूरी मतलब पेशेंस से, धीरज से वह ट्री खड़ा है वहां पर और स्वीकार भाव में खड़ा है. और जब यह ट्री, जिसके पास कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, जब वो अलाइनमेंट में वो ट्री खड़ा है, then it just grows naturally. It doesn't have to think about it. But हमारे अंदर हम कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चूक जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि when we were born, we were perfect, whole and complete. We were a beautiful, beautiful soul, and even now we are a beautiful soul. The only difference is that now we are not experiencing that love which is within us. We are love itself. But Louise कहती है कि हमेशा, you know what is the purpose of life? Purpose of life is to remove the layers of negativity, remove the layers of blockages which is not allowing you to experience that love which is within you. And that is the purpose of our life. So मेरे भीतर जो भी ऐसी चीज है जो मुझे अपने आप से प्यार करने के लिए रोकती है, जो मेरे जीवन से मुझे प्यार करने के लिए रोकती है, वो मेरी सारी चीजों को, वो सारे ब्लॉकेजेस को मुझे निकालना है. And that is the purpose of love. And she also said that कि when you will exit this world, you are not going to take anything, and we all know that. But she said that you are going to take one thing. And what is that one thing? Your capacity to love yourself. How much do you love yourself? How much do you love your life? आप अपने आप से कितना प्रेम कर रहे हो, अपनी जिंदगी से कितना प्रेम कर रहे हो, आप कितने कृतज्ञता भाव में हैं, and that is what is going to take you there for the further journey. So इसका मतलब क्या हुआ? प्यार हमारे सबके भीतर है, but unfortunately we don't feel that love for us. और कई बार लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज तो वो है अपने आप को प्यार करना. And that is the most difficult thing. हम अपने आप को जब प्यार नहीं करते हैं तो सारा जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है. And what is this is? When we are not at ease, our soul, our spirit is not at ease. What does that mean? My mind, my body, and my soul or spirit is not in alignment and has missed the integrity, the alignment. So, जब ये तीनों चीज मेरे अलाइनमेंट में आते हैं, automatically my body is at ease, my spirit at ease, and everything starts flowing to me. So the reason that we are not experiencing easy life, we are experiencing hurdles, we are experiencing barriers. It is the same barrier which we are having inside, which makes us fail to experience that love. And what are those barriers? What are those barriers? Let's talk about it. Yes? Are we ready to talk about that? That what are those barriers? So, अभी मैं एक कहानी बताती हूँ. कहानी है, बनी बनाई कहानी है कि समझो कि एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा जो है वो क्या चाहता है, ज्यादा करके छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, उनको करनी होती है मस्ती, और मस्ती के बाद क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, माँ का प्यार, माँ की पप्पी, माँ की हग्स, माँ का अटेंशन, राइट? और जो माँ है वो बहुत बीमार रहती है, सॉरी बहुत बिजी रहती है और उसको अटेंशन नहीं दे पाती. तो कई बार क्या होता है, कई बार माँ का अटेंशन पाने के लिए बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, एंड दे इनवाइट सिकनेस. जो बच्चे जो है दे इनवाइट सिकनेस. आई सेड इनवाइट.
तो क्या होगा, समझो कि माँ को एक सर्दी, अरे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, अभी माँ का ध्यान कहाँ रहेगा, बच्चे पे आ जाएगा अटेंशन. सो टू सीक दैट अटेंशन द चाइल्ड विल फॉल सिक. ओके, अभी बार बार समझो कि ये बच्चे को तो पहली बार तो बच्चे को माँ ने अटेंशन दे दिया, अभी ये बच्चे तो बार बार सर्दी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो माँ बोलेगी हाँ इसको तो होता है, चलो ठीक है, वो डॉक्टर की दवा देंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएगा. ओके, सो नाउ दिस चाइल्ड थिंक्स दैट आई नीड more attention. ये तो माँ ध्यान देती नहीं है. So what does that child create again? And then there is something little more serious कि फीवर आ गया, अभी बुखार आ गया, तो माँ पूरी रात बच्चे के पास बैठेगी, उसको पट्टी लगाएगी, उसको पैम्पर करेगी, सब तरह से प्यार अपना नौछावर करेगी, isn't it? सब तरह से अपना प्यार नौछावर करने की कोशिश करेगी. एंड माँ जो वो बच्चा जो है, वो बच्चा, नाउ द चाइल्ड इज हैप्पी, मदर इज नेक्स्ट टू मी एंड आई एम सेफ एंड आई एम सिक्योर एंड आई एम लव्ड, राइट? ओके, ठीक है. अगली बार वापस उस बच्चे को और अटेंशन चाहिए. अभी ये बच्चा क्या करेगा, अभी ये बच्चा और क्रिएट करेगा हर्डल्स. कैसे होगा, वो अगली बार फीवर के साथ वॉमिट भी हो रही है, इसको तो डायरिया भी हो रहा है, और माँ की चिंता बढ़ गई. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द मदर हैज टू पे मोर अटेंशन. कि पहले तो सिर्फ सीधा बुखार था, बाद में सीधा सिर्फ बीमार था और ठीक हो गई थी बच्ची 4 दिन में, पहले 2 दिन में ठीक हुई, फिर 4 दिन में ठीक हुई, अभी तो इसको डायरिया और लूज मोशन है, कुछ तो बहुत सीरियस है. नाउ आई हैव टू टेक केयर, मुझे घर पे छुट्टी लेके बैठना पड़ेगा ताकि उसके बाजू में, नहीं तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है. सो नाउ द मदर इज गिविंग मोर अटेंशन, मोर लव, मोर टाइम, मोर एनर्जी. एंड बच्चे को पता चलता है कि ईच टाइम जैसे जैसे माई डिग्री ऑफ डिजीज जो है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे माँ का प्यार और अटेंशन इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ फॉर दिस चाइल्ड दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर लाइफ टाइम, कि अगर मुझे माँ का प्यार चाहिए, अगर मुझे फैमिली का अटेंशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पनिश करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ वी इनवाइट पनिशमेंट फॉर अवर बॉडी. एक बहुत मजेदार किस्सा था. मेरे मेंटर के पास एक लेडी आई थी जिसको कैंसर हुआ था, और वो उनको हीलिंग दे रहा था. तो उन्होंने उनको पूछा कि कैंसर होने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया. जस्ट मेरी लाइट इज फ्लिकरिंग, हाँ देख लो ना. सो कैंसर होने के बाद आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया. तो उसने बोला कि हाँ मेरी लाइफस्टाइल बदल गई, खाना रहन सहन बदल गया, खाना की स्टाइल बदल गई. उन्होंने बोला हाँ बराबर है. उसके बाद क्या बदलाव आया. तो उन्होंने कहा कि मैं डर गई थी. तो क्या लग रहा था, मतलब मैं हेल्पलेस लग रही थी, कि लग रही थी कि इसमें से बाहर आ पाऊंगी कि नहीं. मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, मैं बेचारी फील कर रही थी. ओके, अच्छा, और क्या फर्क आया. तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो मेरे फैमिली में जो मेरे लव्ड वंस थे, जो मेरे हस्बैंड थे, रोज ऑफिस जाते थे, लेकिन कभी वो मुझे पूछते नहीं थे कि तू कैसी है और क्या है तेरा. बट अभी से मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में भी फर्क आ गया. अभी मेरे हस्बैंड रोज ऑफिस जाने से पहले मुझे मिल के जाते हैं, और रोज ऑफिस में से भी एक फोन जरूर आता है कि तू कैसी है. ओह, और क्या फर्क आया. और जो मेरा बच्चा था जो इतना बिजी रहता था, रात रात भर पार्टी भी करता रहता था, अभी उसका पार्टी करना कम हो गया है, और अभी वो मेरे साथ समय ज्यादा बिताने लगा है अपने दोस्तों से. ओह, और क्या फर्क आया. जो मेरी किटी पार्टीज में जो मेरे दोस्त थे ना, वो पहले बहुत मेरे मजाक उड़ाते थे, मेरे पीठ पीछे ये करते थे वो करते थे, और मुझे अच्छा नहीं लगता था. अभी क्या हुआ, अभी अभी वो लोग भी मेरी सहानुभूति मुझे दिखाते हैं, और मुझे फोन भी करते हैं कि तू कैसी है, तू ठीक है कि नहीं. और वो लोग भी मुझे कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं. तो जो लोग मुझे मेरी बुराई और मेरे पीछे पीठ पीछे करते थे, अभी वो लोग भी बदल गए, और वो लोग भी मेरे साथ होने लगे. व्हाट डज दिस मीन. वी फील दैट हमारा माइंड बहुत शैतान माइंड है. उसको लगता है कि जैसे मैं मुसीबत में आऊंगी
या जैसे मैं ये सारी इलनेस को मेरे अंदर भीतर आती है, ऑटोमेटिकली मुझे अटेंशन और प्यार सब तरह से मिलने लगता है. एंड दैट्स द रीजन वी पनिश अवर बॉडी. We punish our body and we attract illness, and sometimes हमें उसमें से बाहर निकलना नहीं होता है because we enjoy this attention. फोन पे आएगा ना, हाय राम તમારી તબિયત કેમ છે, ऐसे बोलेंगे, कुसुम जी તમારી તબિયત કેમ છે, एंड वो बोलेंगे, अरे मैंने बात ज नहीं पूछ, શું હાલ છે મારા, તો એવા ખરાબ હાલ છે. तो कोई पूछेगा, अरे यार वंदना तेरी जिंदगी में कैसे चल रहा है, और वंदना बोलेगी, अरे सिंधी में बोलेगी, मुझे सिंधी नहीं आता है, लेकिन सिंधी में बोलेगी कि बहुत खराब हाल है, मार्केट पूरा डाउन है, बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो गया है और बहुत बुरा हाल है. सो ये जो है ना हमारे अंदर, जो हमारे भीतर एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक आदत पड़ गई है कि जब मैं मुश्किल में हूं, जब मैं परेशानियों में हूं, मुझे ज्यादा अटेंशन मिलना जाता है. And it's like a kind of a punishment we give to ourselves, or we invite, or we attract in our life, so that we get attention, we get love, we get sympathy, we get compassion, and we receive that. And to receive that, we call for it and we hold on to that. And we don't want to drop it. That is the biggest reason. And sometimes, और एक चीज भी होती है जो उससे भी खतरनाक है. बताएं क्या है? आप लोग बोलेंगे हम लोग थोड़ी ना ये सब सोचेंगे, बट ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारे भीतर ये सब होता है और ये सच्चाई है. तो क्या होता है पता है? हमें किसी से बदला लेना होता है, और बदला कैसे लेंगे, रिवेंज कैसे लेंगे, किसी को कैसे साबित करेंगे कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में इतनी गड़बड़ हुई है. तो वह रिवेंज लेने के लिए समटाइम्स वी अट्रैक्ट सर्टेन सिचुएशंस जहां पे सामने वाला गुनहगार, सामने वाले को लगे कि तेरी वजह से ये गड़बड़ हुई है, सामने वाले को गिल्टी फील करवाने के लिए वी अट्रैक्ट सर्टेन सिचुएशंस. इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ. ये तो छोटी सी बात है जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि समटाइम्स समझो कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बातें चल रही हैं, और मेरे हस्बैंड को मैं कुछ सजेशन दे रही हूँ, ओके, और मेरे हस्बैंड वो सजेशन को ठुकरा देते हैं कि तेरी गई बात मैं मेरी तरह से करने वाला हूँ, ओके, और वो चले गए. ठीक है, अभी मेरे भीतर क्या होगा पता है? कौन से डायलॉग्स चल रहे हैं पता है? और ये हमारे सबके साथ ज्यादा करके होता है, ज्यादा करके. अगर कुछ लोगों के साथ नहीं होता है तो बहुत ही बढ़िया है. ज्यादा करके हम लोग सबके साथ ये होता है कि हम भीतर है ना अपने आप में बातें करते हैं, कुछ नहीं, अभी नहीं सुनते हैं ना, जाने दो. जब गिरेंगे ना, जब मिस्टेक होगी ना, जब नुकसान होगा ना, तब समझेंगे. अभी नहीं सुन रहे, नहीं सुनने दो. जब बीमार पड़ेंगे ना, तब अक्ल आ जाएगी ठिकाना. जब नुकसान होगा ना, तब अक्ल आ जाएगी ठिकाना. कोई बात नहीं, जाने दो. ये कौन से डायलॉग्स हैं? क्या क्या यहाँ पे क्या है? क्या इनवाइट कर रहे हैं हम? और किस किस सौदे पे हम ये इनवाइट कर रहे हैं? We are inviting negativity. या नेगेटिविटी. हस्बैंड के बारे में मैंने नेगेटिव सोच लिया कि उसको बीमार पड़ने दो, उसको फेल होने दो, उसको खुद अपनी अक्ल आ जाएगी, खुद अपनी गलती समझ में आ जाएगी, राइट? हम अभी से ही उसके सिर डाल दिए उसके, राइट? को क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि आई एम राइट. कौन सा सौदा कर रही हूं मैं मेरी राइचियसनेस को प्रूव करने के लिए, isn't it? और आप लोगों के साथ भी होता होगा, आई एम श्योर. हम सौदा करते हैं, हमारी राइचियसनेस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम उसके लिए कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार, दिखाने के लिए कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग. वह दिखाने के लिए हम ये सारी चीजें प्रेडिक्ट भी कर देते हैं, उनके लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं. कि हम वो बोलते हैं कभी कि चलो ठीक है, अगर वो भी ये बोल रहा है तो तथास्तु, उसकी इच्छा पूरी हो और सब कुछ उसके लिए अच्छा हो और उसका भला हो. ज्यादा करके
हम उल्टा बोलते हैं। उसको जब गिरेगा ना तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी और तब आएगा मेरे पास कि श्रेया तू सही कह रही थी, मैंने तेरी सुननी चाहिए थी। और ये सुनने के लिए हाय मेरे कान कितने तड़प रहे थे कि तू तो सच कह रही थी और मैंने तेरी बात माननी चाहिए थी। हमारे बच्चों के पास से, हमारे लाइफ पार्टनर के पास से हम ज्यादा करके ये सारी बातें अपेक्षा रखते हैं। हमारे पेरेंट्स के पास से हम अपेक्षा रखते हैं वह सुनने के लिए कि तू सच कह रही थी, मुझे तेरी बात सुननी चाहिए थी। और ये छोटे लेवल पे है। एट द सेम टाइम हम बड़े लेवल पे भी इतने हद तक चले जाते हैं कि जहां पर हम इनवाइट करते हैं ये। और कई बार इतना गुस्सा आता है, ये जो छोटे छोटे लेयर्स जो है ना इतने बढ़ जाते हैं कि हमें रिवेंज लेने के लिए भी उकसाते हैं कि जब वो खाई में गिरेगा ना तब मुझे याद करेगा। या बट ये नेचुरल है ना, नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की, राइट? ह्यूमन की ना नेचुरल टेंडेंसी है, बट एट व्हाट कॉस्ट? एंड अगर अगर नेचुरल टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग की है, थैंक यू मननजीत फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट, यस, बट is it the right consciousness? Are we in that blessing consciousness? Or are we trying to prove our ego? What consciousness is that? That मैं सही हूं और तुम गलत हो और मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए थी। किसको हम फीड कर रहे हैं ये डायलॉग्स, मुझे बताओ। अपने आप को। अपने ईगो को, अपने अहम भाव को हम फीड करना चाहते हैं। और अगर मैं समझो कि राइट कॉन्शियसनेस में हूं, समझो मेरी जगह पे मेरे गुरु होंगे, समझो जिनकी कॉन्शियसनेस वेरी हाई लेवल पे होगी, राइट? वो क्या कहेगा? वो ऐसा बताएगा कि गिरने दो, बीमार पड़ने दो, तो उसको अकल आएगी ठिकाने पे। वो बोलेगा, ये बच्चा अपने आप सीख जाएगा। जहां पर भी है, जैसा भी है, ये बच्चे को साथ मेरा आशीर्वाद है, उसको जो सीखना है वो अपने आप सीख जाएगा। क्या वो गुरु बोलेगा कि आएगा मेरे पास एक दिन रोता हुआ वापस और तब मुझे याद करेगा? ये तो मेरा अहम भाव है और मेरा अहम भाव मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ जिसकी वजह से है। सो इसी तरह से ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन और हम बोलते हैं कि ये तो स्वभाव है इंसान का, उसमें कहाँ बड़ी बात हुई। बट नाउ व्हाट जर्नी आर वी वॉकिंग टुवर्ड्स? We are walking towards the journey of self love and transformation and higher consciousness and love consciousness, radiating love, radiating blessings everywhere. Is it going to help me? No, never. क्योंकि मैंने जो उसके बारे में सोचा कि उसको गिरने दो, उसको बीमार पड़ने दो, वही सीड्स मेरे पे तो रिटर्न होंगे कि नहीं? क्योंकि मैंने जिसके उसके बारे में जो सोचा तो मल्टीपल होके मेरे पास भी वो आएगा। तो यहाँ पर हमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। मेनी अ टाइम्स वी होल्ड ऑन टू इवन sicknesses just to prove other person wrong, just to make other persons feel guilty, and revenge में लेने के लिए भी we hold on to situations, we hold on to illness। हम हमारी जान खतरे में डाल देते हैं, लेकिन हमारा ईगो इतना प्यारा होता है हमें, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार है। क्या युधिष्ठिर ने नहीं दांव पे लगा दिया था द्रौपदी को? हम हमारा ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान भी। तो इसी तरह से हमें अभी ये सोचना है कि व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। देखो एक चीज है, समझो ये मेरा पानी का ग्लास है, ठीक है? अभी पानी का ग्लास से पानी में रोज पी रही हूँ, समझो ये पानी के ग्लास में कहीं क्रैक आ गई और उसमें से पानी रोज लीक हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगी? इसको पकड़ के रखूंगी। अभी पानी पीते पीते भी मेरे कपड़ों पे पानी गिर रहा है, सब जगह पे, यहाँ पे टेबल पे पानी गिर रहा है। क्या मैं ये ग्लास को रखूंगी मेरे पास कि मैं बोलूंगी कि ओके थैंक यू फॉर सर्विंग मी ऑल दिस डेज एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, और मैं ये ग्लास को छोड़ दूंगी, राइट? ठीक है, बट क्यों मैंने इसको पकड़ के रखा है? Because if it is serving me, then only I will keep it with me.
हम हमारी सारी बीमारियां हम इसीलिए पकड़ के रखते हैं, हमारी सारी चैलेंजेस हम इसीलिए पकड़ के रखते हैं और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज इट इज सर्विंग मी, और हम उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। द बिग वर्ड आप अपने बोर्ड पे लिख दीजिए, हीलिंग इज अ चॉइस। If you choose to heal, nobody can stop you. But if that is serving you somewhere, you are going to hold on to it. Healing is a choice. Everything can be healed under the banner of this universe. Everything can be healed. और इसीलिए तो लुइस ने अपना 6 महीने में कैंसर वो हील कर पाई, because she believed that. उसने सबसे पहले तो स्वीकार किया। जहां पे नेहा मुझे पूछ रही थी, नेहा शायद थी जो उसने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस नेगेटिव थिंकिंग एंड दिस whirlpool ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। सबसे पहले लुइस ने क्या किया जब उसको कैंसर हुआ था, तब स्वीकार भाव में आ गई कि ये हुआ है और इस पल की ये रियलिटी है। जैसे मैंने क्यों ट्री का आपको एग्जांपल में दे रही थी कि इतना तूफान आने के बावजूद या बादल आ गए, कुछ कई दिनों तक सनलाइट नहीं है, क्या ये ट्री कंप्लेन्स मोड में रहेगा? नहीं। द ट्री हैज कंप्लीट ट्रस्ट। जिस मदर अर्थ ने उसे जन्म दिया है, जिस मदर अर्थ ने उसे नर्चर किया है, वही मदर अर्थ विल टेक केयर ऑफ द ट्री। और सेम वे लुइस को भी उतना ही पूरा भरोसा था कि जिस जगह से मैंने खुद इस कैंसर को क्रिएट किया है, बिकॉज ऑफ माय बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ माय क्लटर विच इज इनसाइड, और मेरे अंदर भी वही शक्ति है, वो क्लटर को भी निकाल सकती है और कैंसर को भी निकाल सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द फर्स्ट स्टेप इन हर हीलिंग इज when we in the step of healing is acceptance. स्वीकार भाव में आना, साक्षी भाव में आना कि this is what the reality is. Second is having patience with trust. The second is, I will say, trust. Trust is the most important factor in anyone's life. अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है समझो, और मैं फ्लाइट ले रही हूं, लेकिन अगर मुझे विश्वास नहीं हो कि वो पायलट बराबर उड़ा के लेके जाएगा, वो पायलट ने शराब तो नहीं पी होगी, वो पायलट कोई मिस्टेक तो नहीं कर देगा, हवामान में गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, लैंडिंग ठीक होगा कि नहीं, अगर मेरे अंदर डाउट्स है, तो क्या मैं उतने सुकून से, समाधान से, विश्वास से मैं फ्लाइट में बैठ के दिल्ली पहुंच पाऊंगी? दिल्ली पहुंच भी पाऊं, लेकिन वो पूरी फ्लाइट मेरी कैसे रहेगी? टेंशन वाली, एंजाइटी वाली, इजंट इट? बट अगर मुझे पूरा विश्वास है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल विथ माय डिवाइन प्लान, और मैं पूरे परमात्मा की कृपा से सब कुछ सही सलामत जा रहा है और मैं सुरक्षित हूं, और वह विश्वास से मैं अगर वो फ्लाइट लेती हूँ, देन आई विल एंजॉय द फ्लाइट, आई विल एंजॉय माई टाइम, I will enjoy the airport, I will enjoy everything, I'll enjoy my traveling time, and I will reach Delhi safely. So मेरे हाथ में है विश्वास करना या ना करना। अगर विश्वास नहीं किया और अगर मैं शंका करती रही, डरती रही, तो कोई मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता। विश्वास एक सबसे बड़ी चाबी है। और ये विश्वास किस चीज पे है? विश्वास अपने भीतर बैठे हुए उस शक्ति पे है, उस पावर पे विश्वास है कि वह विश्वास होगा तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। Neha is asking the question, what to do when we care too much about people's problem? What to do when we care too much about people? First of all, you are writing too much. Then is it balance? When it is too much, is it balanced? It is imbalance. Everything we have to do in balance. समझो मैं कल से टू मच मिठाइयां खाने लगी, या मेरे बेटे को मुझे बहुत प्यार है और ले खा मिठाई, ले खा मिठाई, ले खा मिठाई, और टू मच करने लगी, तो क्या अच्छा है उसके स्वास्थ्य के लिए या मेरे स्वास्थ्य के लिए?
अगर मैं मेरे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी और वो जहां पे भी जाए मैं उसको बोलूं तू संभाल के जाना, तू ठीक से जाना, मैं ही तेरे साथ आऊंगी और मैं तुझे संभालूंगी और मैं ये करूंगी, क्या मेरे बेटे के लिए, ये ग्रोथ के लिए ये अच्छा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन you yourself is writing that too much about people's problem, what are we doing? What is my undercurrent? Neha, what is your undercurrent? I would like to hear from you. Ma'am, please repeat what you said. What is your? Undercurrent feelings. What I have makes so many feelings like I fear too much, I care too much. बहुत पूरा imbalance ही है अंदर. so what makes you do that too much? Too much. पता नहीं चलता बट वो टू मच हो जाता है, इम्बैलेंस नहीं रह पाती चीजें और कई बार कमिटमेंट के साथ चीजें स्टार्ट करूं फिर से वो रह नहीं पाता, बहुत शॉर्ट टाइम तक कमिटमेंट रह पाता है चीजों को करने का, बैलेंस में चीजों को रखने का, चाहे वो कुछ भी चीज हो, छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो। मैं Beautiful. स्टार्ट करती हूँ कि बहुत छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए ना, हमेशा बड़े टारगेट्स नहीं लो, छोटे छोटे टारगेट्स लो, बट फिर वो छोटे टारगेट सिर्फ एक दिन तक ही रह पाता है, फिर दोबारा मुझे वही रीसेट मोड आने में बहुत टाइम लगता है। और जब मैं मतलब कुछ काम करती हूँ, ये करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो हैप्पीनेस सब में स्प्रेड हो, मैं हर जगह बताती हूँ और उसका मुझे ड्रॉबैक भी लगता है। ओके, सो आप जब है आप बैलेंस में आने की कोशिश भी करते हो और थोड़े समय तक वो बैलेंस में रहते हो और वापस फिसल जाते हो एंड वापस यू गो इनटू इम्बैलेंस मोड। सो मैं वही कह रही हूँ कि जब आप वो इम्बैलेंस मोड पे जा रहे हो तब वो अंदर इमोशंस क्या है? तब नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं अचानक से। वो नेगेटिव इमोशंस में क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में तो जैसे अगर इम्बैलेंस हुआ तब तो पता नहीं चलेगा, बट फिर धीरे धीरे करके ना जेलसी, हेट्रेड, डाउट करना, ये सब आ जाता है, फियर होना। मेरा एक्चुअल में ट्रू नेचर नहीं है, ट्रू नेचर से डाइवर्ट हो जाते हैं इमोशंस। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस कि एंजाइटी फील करना, टू मच हेट्रेड आ जाना, टू मच फियर आ जाना, टू मच डाउट्स आ जाना, and these are the blockages which are not allowing me to love my life. जैसे मैंने कहा कि what is the purpose of our life, what Louis has shared, that we all have that love inside us, we all have, but there are so many blockages that is not allowing me to experience that love. और ये ब्लॉकेजेस क्या है? ये ब्लॉकेजेस हमारे इमोशंस है, इमोशंस ऑफ डाउटिंग, इमोशंस ऑफ, मैंने मेरा स्वभाव बन चुका है फ्राइटन माई सेल्फ एंड फ्राइटन अदर्स। वो डर को पूरा कंटेजियस बनाओ और वो मेरा स्वभाव बन चुका है। मेरा स्वभाव बन चुका है विक्टिमहुड में रहो, हेल्पलेस मोड में रहो, मेरा स्वभाव बन चुका है। मेरा स्वभाव बन चुका है शक करना और विश्वास नहीं करना, और वो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग है शक करना। हम विश्वास ही नहीं करते। देखा जाए तो जैसे अगेन आई एम कमिंग बैक टू द ट्री एग्जाम्पल। क्या ट्री कभी सोचता है कि कल मुझे पानी मिलेगा कि नहीं? कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा, पानी मिलेगा कि नहीं? क्या कभी स्त्री सोचता है कि अरे आज तो क्लाउड है, कल भी क्लाउड है, परसों भी क्लाउड है, मुझे सनलाइट मिलेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं? ट्री इज इन बैलेंस, ट्री इज इन एक्सेप्टेंस, tree is having that patience mode, tree is having that trust that everything will be taken care of, and it is the true unconditional love. But yahan par, we get too much invested in other people. Why? Because somewhere we think that we have fears, we have doubts of maybe they are not able to take care of themselves. What does all these people, parent, do? Overprotective parent. Why do we call them overprotective? बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को।
नहीं मेरे बच्चे को ये हो जाएगा, नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा, नहीं मेरा बच्चा फिसल जाएगा, नहीं मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, नहीं मेरा बच्चा गुम हो जाएगा, नहीं मेरा बच्चा फेल हो जाएगा. And what are they doing? Everything out of fear, everything out of creating an imaginary stories here. And we love to cook those stories. Aha, kya maza hai wo baat mein. We love to cook these stories here. And when we cook that stories here, create it, and then fear us, and we tell our children that, oh no, I'm so love you so much, and I love you so much that I want to protect you. Because मेरे बिना तो तुम अधूरे हो, मेरे बिना तो तुम कभी सुरक्षित ही नहीं रह सकते हो. And I am there to take care of you. And it's my responsibility to take care of you. And we become overprotective. Do you think that child will grow? दूसरों बच्चों की तरह वो चाइल्ड का उस हिसाब से शरीर में ग्रोथ हो जाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल एम्पावरमेंट. हाउ मच इमोशनली एम्पावर्ड दैट चाइल्ड विल फील. मेरे पास एक केस स्टडी थी जहां पे एक यंग लड़की, मतलब नॉट से लड़की, female 40 years around, for 50 years around, and that female is telling me that मुझे कोई भी काम जब अकेला करना होता है ना तो मुझे हिम्मत ही नहीं आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी. और इवन मेरे घर में भी अगर कोई आता है, भले वो प्लम्बर हो कि कारपेंटर हो या कोई भी अननोन आता है या सेल्समैन हो, मैं बहुत डर जाती हूँ और घबरा जाती हूँ. मतलब क्यों डर क्यों लगता है? कि वो मुझे सही नजरों से देखेगा ना, वो सही नजरों से सब सही सलामत रहूंगी ना, मैं सेफ रहूंगी ना. Okay, this is what the fear this lady was having. And I said, okay, when we in a coaching session, we go in a very deeper level, and I was talking about the childhood, बचपन के बारे में बताओ अपने बारे में और सब. तो उससे बातों बातों में एक बात बताई कि मेरे पापा है ना मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे पापा इतना प्यार करते थे. मैंने बोला जैसे कि? तो बोलते थे कि कभी मुझे अकेले बिल्डिंग के नीचे जाने नहीं देते थे. इवन वो नीचे बिल्डिंग के नीचे पान वाला भी रहेगा ना तो उन्होंने मुझे बोल के रखा था कि तू कभी अकेली नहीं जाएगी, तुझे हमेशा तेरे भाई को लेके जाने का या मुझे लेके जाने का या तेरी फ्रेंड को लेके जाने का, बट तुझे कभी अकेले नहीं जाने का. मैं हमेशा मेरे, बिकॉज माय फादर लव्ड मी रियली सो मच. डू यू थिंक वाज इट लव? एंड अगर वो लव था तो क्या ये बच्चे को हेल्प हुआ, ये लेडी को? Somewhere down the line, the father was having so much doubts. The father was having so much doubts and so much trust issues कि वो विश्वास नहीं कर पाई कि मेरी बच्ची उतनी कैपेबल इनफ है कि अपने आप को खुद को संभाल पाएगी. और मेरी बच्ची अगर अकेली जाएगी तो सुरक्षित नहीं है. Somewhere the undercurrent was that. अगर मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है, अगर वही आप वाइब्रेशंस बच्ची की तरफ आप भेज रहे हो तो क्या हो गया? चाइल्ड हैज एब्सॉर्ब दोज वाइब्रेशंस कि मेरा बच्चा मेरे बिना असुरक्षित है. और वहां तक कि एट द एज ऑफ 45 and 50 स्टिल शी इज अफ्रेड कि आई एम नॉट सेफ. इवन अ सिंगल प्लम्बर और अ कारपेंटर कम्स इन माय होम, और इवन अ सेल्समैन कम्स टू माय होम. Did it really help? No. And that is how, जो नेहा का क्वेश्चन था जहाँ पे वो कह रही थी कि we care too much about people's problem because we are not trusting that they are capable enough to take care of themselves. And we are making them handicapped. Under the banner of love, under the banner of protection, we are making them handicapped, dependent on you, that without you they are incomplete. Is this love? Check out. Yeah, Manjit, you have some question. Share, like you said कि हमें विश्वास करना चाहिए, राइट? तो मतलब लेकिन जैसे अभी के टाइम में जैसे मतलब इवन we can't trust our neighbors are like our own जो relations में है. तो like
जैसे आपने ये बोला कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस, तो लाइक उस केस में अगर हम देखें तो लाइक आज के टाइम में मीन्स ये बोलता कि सब ये बोल रहे हैं कि किसी पे विश्वास नहीं करना, ये है, तो ये इट्स नॉट, डू यू थिंक इट्स कंट्राडिक्टिंग, मीन्स कंट्राडिक्टिंग इन द सेंस कि लाइक हम एक तरफ तो विश्वास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाइक मतलब हम ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा, वो तो ठीक है, इट्स गुड, बट जिस तरह का माहौल है अभी, उस तरह के माहौल में क्या ये सोचना, मतलब कि ऐसा ना हो, तो विल इट वर्क? आपका क्या अनुभव है? मतलब मेरा ये अनुभव है कि अगर जैसे कहाँ गए वो? गायब हो गए, शायद उनका इंटरनेट ये होगा। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, आ गए, मंजीत आ गए इधर। क्या सॉरी मंजीत? एक्चुअली मतलब मुझे ये लगता है कि विश्वास हमें करना चाहिए। अ, पता नहीं। जो मेरे भीतर है ना, हम्म। वही मेरे बाहर आएगा। मेरे अंदर जो है, जैसे मैंने कहा कि ब्यूटी बाहर हम देखते हैं, वो मेरे भीतर भी है, एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉय। इन द बिगिनिंग ऑफ द session we talked about nature and mother earth and what is the beauty outside. I enjoy it inside also. And same way, जो मेरे भीतर है वही दुनिया में बाहर भी अट्रैक्ट करूंगी। अगर मेरी आदत है शक करने की, और अगर लुइस ने अपनी बुक्स में क्लियरली लिखा है कि अगर माँ बाप बच्चों को बचपन से वो बताए कि बेटा संभाल के जाना, दिस वर्ल्ड इज अनसेफ, यू नो, कहीं पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ सेफ वर्ल्ड, ये दुनिया सुरक्षित नहीं है, ये दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, तो किसी पे आसानी से भरोसा मत करना और विश्वास मत करना। क्या होगा वो बच्चे के साथ? क्या प्रोग्रामिंग बनेगा वो बच्चे के साथ? क्या इमोशंस लेके ये बच्चा बड़ा होगा? वो बच्चा बड़ा होगा कि ये दुनिया असुरक्षित है और सारे लोग जो है, दे आर आउट देयर टू लूट मी। मुझे उल्लू बनाने के लिए ही है सारे लोग, और मुझे दगा देने के लिए ही सारे लोग। वो बच्चा के बार बार यह प्रोग्रामिंग किया जाए, that child will never able to trust anyone. That child will never able to even trust the doctors. That child will never able to trust the lawyers, the healers. That child will not even able to trust the partner, कि उसको हमेशा अपने पार्टनर पे भी शक रहेगा कि ये सही बंदा रहेगा ना मेरे लिए, या ये सही बंदी रहेगी ना मेरे लिए। Because the programming is done that this world is unsafe, ये दुनिया असुरक्षित है, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। And at the other end, if the child is programmed that way, that this world is a beautiful world, this world is filled with loving people, this world is full of love, and there are so many good souls here out there to help us, to protect us, to support us, to love us. And this world is a beautiful world. And if this is the programming, बचपन से अगर बच्चों के अंदर डाले जाए, then most likely this child will attract people, जहां जाएगा उसको सपोर्ट मिलेगा, जहां जाएगा वहां पे उसको प्रेम वाले लोग मिलेंगे, जो सब उसको प्रेम करने के लिए तैयार है, जो सब उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मेरे पास अनेकों गनी कहानी है। अगर मैं अभी 8:30 ऑलमोस्ट हो चुका, बातें करते करते 8:30 हो चुका, बहुत कुछ बात करनी थी लेकिन समय खत्म हो रहा है। But believe me, this works, and I have my own personal experiences about it. When you will attend my personal workshops, you will hear many stories of my own life, of my own child's life. You will hear many stories जहां पे किस तरह से हमें कहां से क्या मिल जाता है। तो क्या प्रोग्रामिंग मुझे करना है उसके ऊपर है। सो सेम वे हीलिंग इज अ चॉइस। अगर मैं विश्वास रखूंगी कि पहले, सबसे पहले तो मेरे पास मुझे चॉइस चूज करना है कि डू आई रियली वांट टू गेट हील्ड, मुझे ये क्लटर में से बाहर निकलना है। नंबर 1, मैं, मेरी जो भी चैलेंज हो,
हेल्थ इश्यूज हो या फाइनेंशियल या कोई भी इश्यूज, मैं स्वीकार भाव में हूँ, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मोमेंट एंड दिस कैन ऑल्सो चेंज, दिस कैन ऑल्सो चेंज, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मोमेंट. एम आई रेडी टू फर्स्ट बिलीव दैट? स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि इसमें से भी बाहर निकल जाएंगे हम. And then when I have patience, I have trust, and I have acceptance, and then I choose healing, that I can do it. And then the whole spirit comes in our energy form to help us. हम ऐसे डॉक्टर्स को चुनाव करेंगे, वो डॉक्टर्स के द्वारा हमारी जल्दी से, आसानी से चीजें हो जाना शुरू हो जाती हैं. ऐसे ही हम हीलर्स को, लॉयर्स को चुनाव करेंगे, वो हमारी लाइफ में ऐसे आएंगे जिसकी वजह से लाइफ ऐसे आसान बनती जाती है. वी अट्रैक्ट दोस काइंड ऑफ पीपल एंड वी कैन हील कंप्लीटली आउट ऑफ इट. वी कैन कम आउट ऑफ इट कंप्लीटली इफ ए चूज टू. जैसे मैंने कहा, हीलिंग इज अ चॉइस. बट हमें अगर ड्रामा ट्रॉमा में पसंद आ रहा है, मजा आ रही है, तो हम वही चालू रखेंगे. Because we are not choosing to get healed. बाहर से तो बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी ठीक होना है, मुझे से इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन जब मैं उनके पर्सनल कोचिंग सेशंस लेती हूँ ना, तब पता चलता है कि अंदर कितना सारा भर के रखा है जिसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. So everything is a choice. Do you really want to come out of it? Do you really choose to change your mindset, change your concepts, change your perspective? And that is where the whole key begins. The whole पूरे ताले की चाबी है आपकी चॉइस पे. You really want to choose to get healed. और वहां से शुरुआत होती है. So you know, मैंने एक गाना, मुझे आज एंड करूंगी एक गाने से. Healing is a choice. Yes, Manjit, healing is a choice. लिख दो आप अपने इस पे. और मैं एक मुझे एक गाना याद आया था, और वो गाना गाएंगे हम सब साथ में, एंड करेंगे वो गाने से. एक फिल्म का गाना था, और फिल्म के गाने के ऊपर से ये गाना मुझे ध्यान में आया और मैंने बनाने की कोशिश की. हाँ, उसको जाना है, हो जाएगा. हाँ भले, कोई बात नहीं, हो जाएगा. हाँ ठीक है. ना 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 ना, वो नहीं आएंगे, वो उसको वहां पे ही रहने. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट सॉन्ग. वो गाना वो था कि ले जाएंगे दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, राइट? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. तो हम गाना गाने वाले हैं, तर जाएंगे सेल्फ लव की दुनिया में हम तर जाएंगे सेल्फ लव से हम सब तर जाएंगे और डूब जाएंगे. सारे शंका करने वाले डूब जाएंगे. सारे शिकायती लोग डूब जाएंगे. सारे शिकायती लोग डूब जाएंगे. सारे शंका करने वाले लोग डूब जाएंगे. सारे ड्रामा ट्रॉमा में जो डूबे हुए लोग हैं वो डूब जाएंगे. जिनको बेचारा बनने की आदत है और वो बेचारापन बनने वाले लोग सारे डूब जाएंगे. सारे बेचारे डूब जाएंगे. सारे बेचारे डूब जाएंगे. तर जाएंगे सेल्फ लव वाले तर जाएंगे. जब अपने आप को प्यार करने लगेंगे, हम अपने आप को जब प्यार करेंगे, अपने आप सारी चीजें बाहर निकलना, अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है. दुनिया बदल जाती है सिर्फ अपने आप को प्यार करने से. So let's change and let's sing the change. I'm ready to change. I'm ready to change. I'm open to change. I'm open to change. It's easy to change. Change, it's safe to change. It is safe to change.
change, change, fun to change, 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 fun to change, change, I'm ready for change, change, change. I'm I'm ready to ready for change. change, change. Change, change, change. Ho, ho, ho. Change, change, change. Hey, hey, hey. Change, change, change. Change, Ho, ho, ho. Change, change, change. change, 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 change. Change, change. I'm ready to change. I'm changing every moment. I'm happy as I change. I'm changing every moment. I'm happy as I change. I'm changing every moment. I'm growing as I change. I'm changing every moment. I'm growing as I change. I'm changing every moment. I'm healing as I change. I'm changing every moment. I'm healing as I as I change. change. Change, change. I'm ready to change. I'm open to change. It's fun to change. It is safe to change. I love to change. Change. I'm ready to change. जब हम बदलने के लिए तैयार होंगे तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हम जो पकड़ के रखा है ना, जो हमारी राइचियसनेस को इतना टाइटली पकड़ के रखा है, ये सारी राइचियसनेस धीरे धीरे सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। हमारा ईगो सेल्फ है वो मेलो डाउन होना शुरू हो जाएगा सिर्फ ये गाना गाने से और सेल्फ लव की जर्नी पे चलते हैं। अपने आप को हम प्यार करते हैं। हम क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को प्यार करते हैं और प्यार करते करते जब गाना गाते गाते जब भी हम ये रास्ते पे चलते हैं, ऑटोमेटिकली रास्ता आसान बन जाता है। एंड वी ड्रॉप ऑल अवर राइचियसनेस एंड देन वी मेक अ ब्यूटीफुल वाइज चॉइस फॉर आवरसेल्फ। Healing is a choice, and even if to hold on to healing is hold on to struggle and illness is your choice, and you choose healing, that is also your choice. So thank you, Bhavna, Punjwani, you find it awesome. Thank you, thank you, thank you. Before you leave, if you can show your faces, beautiful smiling faces, I would be very happy. Thank you, Bhavna, and love. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you. God Thank you. bless you. I have a question. Love last you. question. Thank you so much. Thank you so much. You bring a smile on our face when you sing that change stage. I so love it. Yeah, thank you. Thank you Even so I was singing, but of course I just kept my camera off. Okay, no My worries. granddaughter is sitting with me, so I was singing with her. I was asking her also to hear. So beautiful. Say hi. Say hi. हाय। सोचो बच्चों में अभी से ये गाने से हम ये सीड्स डाल देंगे तो उनको बदलाव ऐसे वो बदल जाएंगे। अच्छा चलो कल पिकनिक में जाना है। ओ वाओ वी आर गोइंग टू पिकनिक। अच्छा पिकनिक कैंसिल हो गए। ओ वाओ वी आर आल्सो इट्स ओके इवन पिकनिक कैंसिल हो गए। सो एनीथिंग any situation changes outside, it is not, we are not taking it personally, hurt होगा easily. No, I teach her a lot of positive affirmations. She started writing in the book. Beautiful. She writes things like, I'm awesome, I'm clever, I'm smart, I'm beautiful, I'm a money magnet, and I don't know what all she writes. Beautiful, beautiful. Yeah. Great, Thank great. you all mentors. We are learning so much from all of you. Thank you. Thank you to the Yes. bottom of my heart. Thank you. Thank you. या मंजित आपको कुछ क्वेश्चन था, आपने कहा कि क्वेश्चन है देश हाँ जी। से जब इतना साल नहीं चेंज हुए तो आप कैसे चेंज होंगे? यस, दिस इज ऑल्सो अगेन प्रोग्रामिंग। कितने सारे लोग बोलते हैं अभी तो हमारी उम्र हो गई, अभी तो हमारे बाल पक गए, इतने साल हमने इसमें कर लिया, अभी कहाँ से बदलाव आएगा? बदलाव मुश्किल है, जो हमारी जहन में बस गया है वो बदलना मुश्किल है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग हमने किए हुए हैं, बट अगेन इट्स योर चॉइस। इफ यू चूज nobody will stop you. दिल से आप अगर वो चूज करोगे तो कि आई वॉन्ट टू बिकम वन विद द स्पिरिट विद इन, एंड व्हेन आई बिकम वन विद द स्पिरिट विद इन देन द होल वर्ल्ड इज डिफरेंट। और उसी लिए हमें बदलना है कि देखो सबकी लाइफ में सारे ऊपर नीचे चढ़ाव आने वाले ही है और आएंगे ही, लेकिन हम कितने आसानी से उसको देखते हुए शांति से पार कर सकें, या हमें हमारी शांति घुमा के हमारा पूरे मन के टुकड़े टुकड़े करना है। पीस टर्न्स इनटू पीसेस,
वो हमारे ऊपर है। एंड उसी के लिए अगर हमने रोज बदलने के लिए अगर हम तैयार है, then we are tuning into those frequencies that I am flexible and I'm ready to learn. I'm well equipped with my emotional empowerment. I'm very much well equipped. So ये बदलाव तो हम वैसे भी आप बोलो या ना बोलो, आप बदल नहीं रहे, हम सब बदल रहे, हर पल में बदल रहे, हर पल में मेरे शरीर में एक नया सेल बन रहा है और पुराना सेल डाई हो रहा है, हर पल मेरे बाल सफेद हो रहे, हर पल हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ ही रहा है। आप बदलाव को चुनाव करो या ना करो, बदलाव, everything, nothing is constant, only change is constant. We have heard all of this, right? And we all know it. Then why don't we even embrace that change with love, with ease, and then experience the life? So every thought is a seed, and definitely when I am ready to change, I'm ready to change. हम easily adaptable बन जाते हैं situations से, बहुत आसान हो जाती है। situations हमारे हिसाब से नहीं होगी, तब उसको स्वीकारना, शांति से स्वीकारना। चॉइस दो रहती है, जबरदस्ती स्वीकारते हैं कई बार, क्योंकि मेरे पास नो चॉइस है, चॉइस नहीं है और मैं जबरदस्ती स्वीकारती हूँ, वो रियल एक्सेप्टेंस नहीं है। रियल एक्सेप्टेंस वो है कि आप शांति से जो सिचुएशन आई है उसको स्वीकार करो कि ये भी मेरे प्रभु का प्रसाद है, एंड उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। एंड दैट इज वेयर वी हैव टू गो टू दैट स्टेज, एंड दिस इज द journey of self-love, journey of welcoming change. So welcome to the world of transformation and welcome to the world of journey of self-love. अगले हफ्ते में self-love की journey वापस होगी 5 days की. I will be announcing it. I request all of you that please do join in. Just an investment of rupees 555, but you will receive a lot in that. Many examples, we will be doing practical work in it. So I invite all of you. And in this month end, we are going to have a Heal Your Life workshop on 29th, 30th, and 1st. And mostly it will be outstation. Then, it will be 3 days. So retreat. So whoever is planning to join, dive deep into Louise Hay's knowledge and philosophy and wants to explore, please do join in. So thank Which you. place it is? I'm in Mumbai. Where are you, Manjit, from? I'm in Pune. Okay. So maybe I will planning for Karjat. Let's see. Karjat. Okay. What opens up. Karjat is in between Pune and Bombay. Yes. Right. So you can think about it. And whoever is interested, please PM me, personal message bhej do. Then we can think about it and I will give you more details. And another thing that I do give personal coaching. First, my 60 minutes personal coaching is free. So whoever wants to choose that, you are choosing that also. So whoever wants to choose that, please do approach me. And we can fix an appointment for all of you. Thank you so much. Thank you. And I love you. I love you. And I love you. Thank you, Shreya. Love you. Thank you. Thank you. Thank you. Love you too. Thank you. Thank Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you.